آج ہم خدا کے تعلق سے جو بات سیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے، وہ ہم خدا کے کچھ ناموں پر غور کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کسی بھی جگہ شخصیت یا چیز کا جو نام ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ شہر کا نام ہوتا ہے، شخصیت کا نام ہوتا ہے۔ اگر ہم قائد اعظم کا نام لیتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ قائد اعظم جو ہیں انہوں نے پاکستان بنایا تھا اور وہ پاکستان کے فاؤنڈر ہیں، وہ ہمارے بانی ہیں۔ کسی جگہ کا نام لیتے ہیں ہم، اگر مینار پاکستان، تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک نقشہ آتا ہے کہ ایک وہ گراؤنڈ ہے اور مینار بنا ہوا وہاں پر۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نام نہ ہو، اور جس خدا کو ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، جس کی ہم پرستش اور عبادت کرتے ہیں، اس کے بھی بہت سے نام ہیں، جن میں سے کچھ ناموں کو آج ہم اسٹڈی کریں گے اور ان کے مقاصد دیکھیں گے۔ جب ہم ان کو اسٹڈی کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ خدا کتنا زبردست ہے اور اس کے نام بھی جو ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم سب سے پہلے پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اور پہلی آیت اگر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، خدا نے پانی کو بنایا، اور پھر خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ خدا یہاں پر جو عبرانی زبان میں ترجمہ ملتا ہے خدا کے نام کے لیے وہ ہے ایلوہیم۔ ایلوہیم، ہم اکثر گیت بھی سنتے ہیں، ایلوہیم گاڈ آن ہائی، کین یو ہیئر یور پیپل کرائی، ہے، اور وہ گیت ہماری فیورٹ ہے، وہ بہت اچھا، پرنس آف ایجپٹ کا، ہم سنتے ہیں اس کو۔ ایلوہیم جو ہے اس کا مطلب ہے میرا خدا، میرا بنانے والا۔ ٹھیک ہے؟ جب آپ خدا کی عبادت کے لیے اس کے سامنے آتے ہیں، جب اس کے سامنے جھکتے ہیں، جب اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، پرسنل عبادت کرتے ہیں یا جماعت کی صورت میں، تو جب آپ خدا کا نام لیتے ہیں تو پہلا عکس آپ کے ذہن میں یہ ابھرنا چاہیے کہ وہ میرا بنانے والا ہے۔ پہلی بات آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ خدا نے اس کائنات کو بنایا اور مجھے بھی بنایا، اور کیا خوب بنایا۔ آپ دیکھیں کہ یہ امریکن جو بڑے سائنسدان ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انسان کو بنا لیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انسان کی عمر کو بڑھا لیں۔ عمر بڑھانے میں وہ کامیاب بھی ہو گئے ویسے، اور وہ بہت سے تجربات ایسے کر رہے ہیں، اور وہ جب تجربے کرتے ہیں تو کچھ عجیب سی چیزیں بھی پیدا ہوئی ہیں، اور جو وہ عجیب جانور کی شکلیں بن گئی اور کچھ بن گیا، وہ بھی بڑے تجربے کر رہے ہیں۔ لیکن جیسا انسان خدا نے بنایا ایسا کوئی نہیں بنا سکتا، یہ صرف خدا ہی کر سکتا تھا۔ تو خدا جو ہے وہ ہمارا بنانے والا ہے۔ جب آپ خدا کے پاس آئیں آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ خدا نے مجھے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کس نے بنایا ہمیں؟ دیکھیں، ہم کہیں جاتے ہیں، ہم سمندر کو دیکھتے ہیں، کتنا بڑا سمندر ہے، لیکن سائنسدان بتاتے ہیں، ماہر لوگ بتاتے ہیں کہ 75% دنیا میں پانی ہے اور 25% خشکی ہے۔ لیکن بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے سمندر کی حد باندھ دی، ورنہ 75% تو بہت زیادہ ہے، تھوڑی سی خشکی ہے پوری دنیا میں۔ اور اگر لاہور سے امریکہ جائیں تو 8 سے 9 گھنٹے بڑے سمندر پہ اڑتا ہے جہاز، 8-9 گھنٹے سمندر ہی کراس کرتا ہے، جبکہ اس کی 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے وہ۔ تو وہ آپ اندازہ کریں کہ سمندر کتنا بڑا ہے۔ لیکن خدا جو اس نے ہمیں بنایا، خدا جس نے اس کائنات کو بنایا، ایلوہیم جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے اس کی لکھا حد ٹھہرا دی۔ تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، میں اور ہم باتیں کرتے ہیں، شاید بھائی بھی، ہم نقشہ دیکھتے ہیں تو نقشہ آپ کو پتا ہے دنیا کا جب دیکھتے ہیں تو گول ہوتا ہے، وہ گول ہے پوری دنیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو پانی سائڈوں پہ ہے، اگر آپ گول تصویر دیکھیں تو سائڈوں پہ پانی آیا ہوتا ہے، لیکن تو بھی وہ پانی جو ہے جمپ کر کے باہر نہیں آتا۔ کراچی کا سمندر بھی جو اوپر ہے اور کراچی نیچے ہے، لیکن تو بھی وہ اس کو دبو نہیں رہا، کیونکہ جس خدا نے اس کائنات کو بنایا، جس خدا نے ہمیں بنایا، اس خدا نے اس کی حد بھی ٹھہرائی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ خدا ہمارا بنانے والا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ ایک گھر بنا لیں تو آپ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ ایسے ہے نا جی؟ اس کا کوئی کونا نہیں خراب ہونے دیتے، ہر کوئی اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہے نا جی؟ تو آپ اگر گھر بناتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ موٹر سائیکل خریدتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کپڑا خریدتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا؟ سنبھال کے رکھتے ہیں کپڑے کو، کس اس کو جلاتے رہتے ہیں بیٹھ کے، بلیڈوں سے کاٹتے رہتے ہیں؟ نہیں کرتے، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر چیز جو آپ کو مل جاتی ہے اس کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ہمیں ایک ساؤنڈ سسٹم ملا، بڑے سال ہو گئے، جو بھی دیکھتا پاکستان میں کہتے ہیں بھائی سارے پاکستان میں اتنی حفاظت کسی نے نہیں کی ہوگی، اس کی تار پہ مٹی نہیں لگی ہمارے ساؤنڈ سسٹم کی، ہم نے اتنی حفاظت کی ہے اس کی، اس کو لپیٹ کے بند کر کے رکھتے ہیں تاکہ خراب نہ ہو جائے۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، خدا جس نے آپ کو بنایا وہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گا؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایلوہیم، جو خدا ہمارا بنانے والا، پہلا میں آپ کو نام یہ بتا رہا ہوں، اس کا نام ایلوہیم ہے، ELOHIM۔ ایلوہیم کا مطلب ہے گاڈ، مائی کریٹر، میرا خدا، میرا بنانے والا۔ اس نے آپ کو بنایا، آپ کو خلق کیا، آپ کو مٹی سے بنایا، تو آپ کے اندر زندگی کا دم پھونکا، آپ جیتے جان ہوئے، آپ کے ساتھ وہ رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔
کیا وہ آپ کو برباد کرنے کے لیے اس نے بنایا؟ بتائیں کیوں برباد کرنے کے لیے بنایا، یا آپ کے ساتھ محبت کرنے کے لیے آپ کو بنایا اس نے؟ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے. پریز دی لارڈ. وہ آپ کو کہیں بھی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا. ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ یہاں نکلیں باہر کتنی بجلی ہے، خراب تاریں پہ لکھا خطرہ 440 وولٹ، آپ خود ہی کھمبے پہ چڑھ جائیں. پچھلے دنوں ایک آدمی چڑھ گیا تھا نواز شریف کے گھر کے باہر، عورت تھی شاید، وہ اوپر چڑھ گئی کھمبے پہ. اب اگر وہ چڑھ گئی ہے، اس کو کرنٹ لگ جائے، مسجد تو کوئی ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ تو بھائی خود ہی چڑھی. انہوں نے کہا تھا بھائی جان آپ خود ہی چڑھیے. وہ اسلام آباد میں جو بندہ فائرنگ کر رہا تھا، اب اس کے گٹے پہ گولی لگ گئی، 2-3 اور لگی، میدے میں بھی لگی. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ خود ہی ذمہ دار ہے. جنہوں نے گولیاں ماری کسی کو کوئی اس کے خلاف پرچہ نہیں کریں گے وہ، کیونکہ اس نے 4-5 گھنٹے لوگوں کو تنگ کیا. الٹے کام کر کے خود ہی اپنی مشکل میں پھنس جائیں، اور پھر خدا کو وہ آدمی یہ کہے اصل میں وہ غلط کر رہا ہے، اس نے غلط کیا ہے، اس کا موٹو غلط ہے. تو جو غلط آدمی ہو اور پھر وہ خدا پہ الزام لگائے تو یہ تو غلط بات ہے جی. ہم خدا کو نہیں کہہ سکتے. خدا ہمارے لیے اچھا ہی ہے، اس کے منصوبے اچھے ہیں، اس کے پلان اچھے ہیں، اس کا ارادہ اچھا ہے اور اچھا ہی رہتا ہے. میں نے کل ایک حوالہ دیکھا ہے، ایسے میں بیٹھا دعا کر رہا خدا کے پاک کا شاید 54 باب، اکثر میں اس کو پڑھتا ہوں بار بار، خدا ان کے دکھوں کو. اور وہاں سے جب میں آگے نکلا تو وہاں لکھا تھا یہ طوفان نوح کا سا معاملہ ہے اور میں تجھے نہ گھڑکوں گا. لفظ ہے جیسے ہم جھڑکنا کہتے ہیں، ایسے گھڑکنا بھی لفظ ہے، لیکن زیادہ تر اردو لینگویج میں یہ لفظ چل رہا ہے جھڑکنا. کسی کو کہنا مت بچے کو جھڑک دیا میں نے. پہلے جب برے صغیر پاک کو تھا تو گھڑکنا بھی کہتے تھے، تو جھڑکنا اور گھڑکنا ایک ہی بات ہے. تو وہاں پر یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اب طوفان نوح کا سا معاملہ ہے اور اب میں تم کو نہ گھڑکوں گا، اب میں تجھ کو نہ گھڑکوں گا. میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اگر وہ جھڑکنے پہ آئے، اگر وہ غضب ظاہر کرنے پہ آئے تو کیا کچھ کر سکتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے خدا نے ہمیں بنایا ہے، خدا ہمارا بنانے والا ہے. ہمارا خدا اس کا نام ہے ایلوہیم. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور جو کوئی چیز بناتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کو خراب نہیں کرتا، وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اس کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بناتا. ہاں اگر آپ اپنی مرضی سے موت کی طرف چلے جائیں تو پھر آپ کی اپنی چوائس ہے، یہ چوائس آپ کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو چاہیے تھا کہ وہ ایسا میں فٹ کر دیتا کہ گناہ کی طرف جاتے نہ. تو بلی گرہم کہتے ہیں پھر انسان نہ ہوتا، روبوٹ ہوتا ہے. جیسے روبوٹ کو فیڈ کر دیا جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ جھاڑو کا کام کرتا ہے، وہ گھر میں صفائی کرتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے. روبوٹ جو ہے جو کچھ میں فیڈ کر دیا آپ نے. اور خدا جو ہے وہ روبوٹ نہیں بنانا چاہتا تھا، وہ انسان بنانا چاہتا تھا جو آزاد مرضی سے اس کو محبت کرے، آزاد مرضی سے اس کے ساتھ چلے. ٹھیک ہے جی. پہلا نام خدا کا ہے ایلوہیم. دوسرا نام پیدائش کی کتاب کے 2 باب کے 7ویں آیت میں آتا ہے. یہ ترجمہ یہاں پر نہیں لکھا ہوا، یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، اس کے اردو میں یہوہ لکھا ہوا. ٹھیک ہے نا. جو باقی میں ایلوہیم کا بھی بتا رہا ہوں جو یہ سب عبرانی زبان کے الفاظ ہیں. یہوہ دوسرا نام ہمیں ملتا ہے، یہوہ کا مطلب ہے میرا باپ. پہلا والا جو ہم نے دیکھا اس کا مطلب ہے کہ میرا بنانے والا. ٹھیک ہے جی. دوسرا پیدائش 2 باب کی 7ویں میں ملتا ہے یہوہ، مائی فادر. اور خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا خروج کی کتاب کے 6 باب میں، اور اس نے اس سے کہا میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں اور میں اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہیں ہوا. باپ کا مکاشفہ. اچھا دیکھیں یہ جو مکاشفے ہوئے یہ ہمارے کو ہوئے ہیں، یاد رکھیں یہ بھی بڑا فضل ہوا اس کا کہ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمارا باپ ہے. خدا کا شکر ہو ہم پر یہ بات عیاں ہوئی، اس کی عقدہ کشائی ہوئی. پہلا مطلب دیکھا ہم نے ایلوہیم، اس کا مطلب میرا بنانے والا، میرا کریٹر. اور دوسرا نام ہم نے دیکھا یہوہ. یہوہ تو عام ہے نا، سب لوگ جانتے ہیں. یہوہ وٹنس ایک مشن ہے، وہ یہوہ کے اوپر سٹینڈ لیا ہوں. تو یہوہ کا مطلب ہے میرا باپ. اب مجھے آپ یہ بتائیں، پہلے والے میں جب اس نے بنایا تو میں نے بتایا کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کی حفاظت کرتا ہے، سنبھالتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو باپ ہے اور قریب آ گیا. اب اس نے کہا موسیٰ سے دیکھ بھائی میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب پر اپنے یہوہ نام کے ساتھ ظاہر نہیں ہوا، تیرے پر ظاہر ہو رہا ہوں. اب تو دیکھ لے، اب میں تیری قوم کو اس طرح سے لے کر چلوں گا جیسے باپ اپنے بیٹے کو اٹھائے پھرتا ہے. پریز دی لارڈ. اور ایسا ہی ہوا. بنی اسرائیل قوم کو جب خدا لے کر نکلا تو اس نے بتایا کہ یہوہ یعنی میرا باپ. اور وہ یہوہ جو تھا باپ اپنے بچوں کو لے کر چلا. ایک حوالہ ہم دیکھیں گے، لکھا ہے 103 زبور کی 13ویں آیت، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کوئی ہے یہاں پر بیٹھا جو اپنے بیٹے کو صبح شام چھریاں مارے، گلا دبائے، اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کبھی کبھی ہلکی پھلکی موسیقی کر لیتا جب بچہ ناک میں دم کر دیتا. ہلکی پھلکی موسیقی، ٹیوننگ ضروری ہے. ٹیوننگ نہ ہوئے تو پھر گڈی چ کچرا پھنسیا رہتا ہے. تھوڑی بہت ٹیوننگ ہو جائے تو اچھی بات ہے. میں بھی ٹیوننگ کر دیتا ہوں کبھی کبھی.
लेकिन 6 महीने में एक दफा, वो भी जरूरी। लेकिन वो बच्चों की मोहब्बत, बच्चों की बेटरमेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं उनको खुदा न खास्ता तबाह व बर्बाद ही कर दूं। बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है, याद रखें। मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर करता हूं, हर कोई शख्स करता है। तुम में से ऐसा कौन है, यीशु मसीह ने कहा, जिसका बेटा उससे मछली मांगे तो उसको सांप दे दे? वो कहे नहीं जी, मच्छी ना खा, आज अंडा भी ना खा, ये सांप खा। कोई है जो अजदा ला के पका खिलाए अपने बच्चों को? अफ्रीका में खिला देते हैं क्योंकि उनको पता खिलाना कैसे। अफ्रीका में पापा बताते हैं मेरे कि उसको इस तरीके से काटते हैं, उसका जहां जहां जहर होता है उसको आगे पीछे से काट देते हैं। उनको कालों को पता है जहर कहाँ होता है, उसको धो के मच्छी की तरह खा लेते हैं वो। लेकिन हम नहीं खिलाएंगे, हम अपने बच्चों यानी कि बुरी चीज नहीं देंगे। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, आपको पता औलाद के लिए हमेशा माँ बाप का दिल तरस से भरा रहता है। चाहे औलाद कितनी भी नाफरमान हो जाए, चाहे कितना भी वो सता दे। मैंने एक वो शायर है मजाकिया, जो उसने एक बच्चे के ऊपर उसने लिखा, उसने ऐसा लिखा, उसने बताया कि बच्चा जो है अपनी माँ को मार के, उसको धक्के देकर और रोटी खाए बगैर, नाश्ता किए बगैर घर से स्कूल आ गया। और वो माँ जो थी उसके बदन से खून बह रहा था, और अपने बेटे का पूछती फिर रही थी कि बेटा आपने मेरे बेटे को नहीं देखा? उन्होंने कहा आंटी क्या बात है? उसने कहा आज वो लड़के नाराज होके आ गया, रोटी भी नहीं खा के आया, तो मैं उसके लिए रोटी लेके आई। कैसी माँ के मोहब्बत है, कैसे माँ बाप का प्यार है ये। तो दोस्तों, जिसने उस माँ के अंदर इतना प्यार रखा, जिसने एक माँ को, आप बताएं वो बाप हमारे लिए क्या बुरा सोच सकता है? हम बहुत खिलाफ होते हैं खुदा के, हम बहुत खुदा को बुरा भला कह जाते हैं। हम खुदा के प्लान्स को, ईसाया 49 क्या लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपनी जवानी के फर्जंद पर तरस ना खाए? लेकिन हाँ, वो शायद भूल जाए मगर मैं तुमको ना भूलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। खुदा एलोहिम मेरा बनाने वाला, खुदा यहोवा गॉड, यहोवा मेरा बाप। और आप जब उसको बाप, जब आप बाप कह के आएंगे तो बाप तो बेटे के लिए उसने सब कुछ ही, बच्चों के लिए सब कुछ ही कर देता है। यहाँ तक उसने मोहब्बत की, यहाँ तक इतनी मोहब्बत की उसने, आपसे मुझसे इतनी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमें बचाने के लिए, हमें बहाल करने के लिए, हमें रिस्टोर करने के लिए, हमारे उस मकाम पे में वापस लाने के लिए। सो पहला नाम है एलोहिम मेरा बनाने वाला। दूसरा खुदा का नाम है यहोवा, यहोवा गॉड मेरा बाप। इसमें लिखा एक और वाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अस्तिशना पहले बाप की 31 में लिखा, और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावन तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। हालेलुया। और एक और बात बताऊं आपको और मुझे ये ऑनर दिया गया है कि हम उसको बाप कहते, फरिश्ते भी बाप नहीं कहते। फरिश्ते होली होली कहते हैं, फरिश्ते प्रस्तिश करते हैं, लेकिन फरिश्ता कभी जिब्राइल नहीं उसको कहता कि बाप, नहीं, उसको ये हक हासिल नहीं है। बाप कहने का हक सिर्फ हमारे पास है। हालेलुया। हम आज तक किस बात को समझ नहीं पाए, हम बहुत बार इस हक को समझे ही नहीं। बाप अपने बेटों पर तरस खाता है। मुशर्रफ बेटा है वापस आया तो बाप ने कोई आर्गुमेंट, कोई सवाल नहीं किया। उसने गुजरे हुए जमाने की बुरी बातें उसको कोई याद नहीं कराई, और उसने कहा हाँ मेरे बेटे। वो उसका इंतजार कर रहा था। उसके अंदर इतनी मोहब्बत थी कि उसने एक भी शिकवा नहीं किया कि तूने मेरा लाखों डॉलर तबाह कर दिया, तो लाखों रुपया बर्बाद करके तू वापस आ गया। नहीं, खुदा जो है मोहब्बत वाला खुदा है, हमारा बनाने वाला है और हमारा बाप है। एक और नाम हमें मिलता है पैदाइश 17 बाब की पहली 6 आयत अगर हम पढ़ें तो वहां पर ये लिखा हुआ है। पैदाइश पढ़ें भाई जरा, 17वां बाब उसकी पहली 6 आयत। कुरान के जिंदा कलाम में लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तो मेरे हुजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। तब अब्राम सरनगू हुआ और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। और मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद से बर्पा होंगे। आमीन आमीन। यहाँ पर इसके अंदर जो नाम इब्रानी ज़ुबान में मिलता है वो है यहोवा एल शडाई। आपको पता है मैं गीत भी गाते हैं ना, आओ हम शुक्र करें यहोवा यरीका, ऐसे करके उसमें एल शडाई और 3-4 नाम आते हैं। लैंप फेलोशिप में हमने बड़ा गाया ये गीत, बहुत मुझे पसंद था ये। यहाँ पर खुदा का नाम हमें मिलता है, पहले हमें मिला एलोहिम, फिर मिला यहोवा, फिर तीसरा नाम हम देखते हैं एल शडाई। एल शडाई का मतलब है माय सप्लायर, माय सप्लायर एल शडाई, यहोवा एल शडाई। सप्लायर का मतलब पता है आपको क्या होता है? सप्लायर कौन होता है?
कोई बताए, कोई बात नहीं, अगर गलती होगा तो सप्लायर जी सप्लाई करने मुहैया करने वाला। चीजें, बिल्कुल इसका एक मतलब ये भी मुहैया करने वाला भी है। और सप्लायर जो होता है, अब मैं जहाँ शाहिद भाई काम करते हैं, हमारे सप्लायर जो है ना, जो नीदरलैंड में है, हॉलैंड में है, साउथ अफ्रीका में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, दुबई में है। तो क्या होता है, जिस चीज की हमें जरूरत होती है हम रिक्वेस्ट बना के इस्लामाबाद कंप्यूटर के थ्रू भेज देते हैं। कब वो इसको लेते हैं, वो कराची वालों की रिक्वेस्ट लेते हैं, वो पेशावर वालों की रिक्वेस्ट लेते हैं, इस्लामाबाद वालों की रिक्वेस्ट लेते हैं, और चारों को एक मास्टर ऑर्डर बनाकर और वो उसको फिर देखते हैं कौन कौन से सप्लायर के पास कौन कौन सी चीज है, वो उसके पास भेजते हैं, और वो 1 महीने 15 दिन जो भी उनका टाइम है उसमें उनको वो कंटेनर पहुंच जाते हैं और वो सबको सप्लाई कर देते हैं। सप्लायर जो होता है, चीजें सप्लाई करने वाला, जरूरतें पूरी करने वाला। हमारी जरूरत वहां से पूरी होती है, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से। लेकिन खुशखबरी ये है कि हमारा बाप जो हमारा एलोहीम है, जो हमारा बनाने वाला है, जो यहोवा है, जो हमारा बाप है, जो यहोवा एल शडाई है, वो हमारा सप्लायर है, यानी हमारी जरूरतें भी पूरी करने वाला है। हालेलुया। अब इब्राहिम को जब उसने बुलाया, यीशु ने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। इब्राहिम ने नहीं चुना था, खुदा ने चुना था। खुदा चुनता, याद रखें। उसने कहा तू निकल वहां से, ये नातेदारों को छोड़ और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तू चल जाओ उस जगह में तुझे। और वो चल पड़ा, बगैर सवाल किए, बगैर क्रॉस क्वेश्चनिंग किए चल पड़ा। और यहां पर खुदा ने उससे जब बात की यहोवा एल शडाई के रूप में, उसने कहा कि मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, मैं यहोवा एल शडाई हूं। हालेलुया। कितना प्यारी बात है। आप देखें कि खुदा हमारा सप्लायर है। एल शडाई का मतलब सप्लायर, जो चीजें, जिस चीज की जरूरत होती है वो सप्लाई कर देता है हमारे को। हम पता नहीं कॉन्टेक्ट नहीं रखते ऐसा, क्योंकि हम फेथ ही नहीं रखते, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है, शायद खुदा को इस काबिल ही नहीं समझते हैं कि वो हमारी जरूरत पूरी कर सकता है। हमें तो भाई छोटी बड़ी, ले कल की गवाही सुन लो। मेरा बेटा जो तबला बजा रहा है, समरून, कह रहा मैंने खीर खानी है, मुझे खीर बना के दो। उसने कहा जी खीर बना लेते हैं। छोटा कहने लगा जी मैंने वो खीर खानी पाउडर वाली जो पैकेट में मिलती, वो चावल वाली मुझे अच्छी लगती। बड़ा कहने लगा जी मैंने चावल वाली खानी। मैंने कहा यार खीर का किस्सा बंद करो, देखेंगे खीर खुदा मैया का, खुदा जब देगा खा लेंगे। अभी तुम क्योंकि 2 टेस्ट मांग रहे हो तो तुम दोनों एग्री नहीं हो रहे, तो अभी खीर का मामला बंद करो। बहन ने दरवाजा खड़का दिया इधर से और वो खीर का थोड़ा बोल लेके आ गई। सप्लायर यहोवा एल शडाई खीर भी देता है, मिठाई भी देता है, कपड़े भी देता है। और मैंने कहा ले भाई, वो इस तरीके से बनी, उसमें चावल भी थे और उसमें पाउडर भी था, वो ऐसी उसने बनाई थी, वो दोनों को ठीक लगी। हालेलुया। यहोवा एल शडाई हमारा सप्लायर। उसने देखा, उसने कहा बच्चों को खीर चाहिए भेजो, क्योंकि हम तो ईमान रखते हैं इस बात पे, जिस चीज की जरूरत होगी यहोवा एल शडाई, ही इज आवर सप्लायर, ही इज आवर गॉड, ही इज आवर क्रिएटर। हालेलुया। हमारा बनाने वाला, हमारा बाप, हमारा सप्लायर। छीमे भाई को सप्लाई करता कितना कुछ, देखो बेटी की शादी करने के लिए भाई को कितना कुछ सप्लाई किया, सब कुछ सप्लाई करने वाला है। बस सिर्फ हमें ईमान से आए तो सही अपने बाप के पास, अपने बाप से बना के तो रखो यार। प्यो ने जब बना के नहीं रखनी तो फिर प्यो की करेगा। आप प्यो दी जजात तो बाहर निकल जाइए, दौड़ जाइए, है जो उसकी टेरिटरीज है उससे बाहर चले जाए तो फिर तो शैतान पकड़ लेता है, कहता आ जा तेरे तो मैं कितनी देर तो इंतजार करेंगे। और उसकी इब्राहिम की क्या जरूरतें थी आपको पता है? जब वो निकला तो बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड निकला था, और वहां पर खुदा ने उसको इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया। वो बादशाह को मेहरबान कर दिया उसके ऊपर। उसने इसकी बीवी को अपने महल में बुला लिया। उसने कहा देख भाई तू ऐसे कहना कि तू मेरी बहन है, वेख तू गल सुन, ऐ नहीं कहना, तू ऐ कहना कि मेरा बड़ा भरा ते मैं दी छोटी भैन, हमशीरा दी छोटी। उन्हें ठीक है। और बादशाह ने कहा भाई, क्योंकि खूबसूरत थी वो औरत, और खुदा ने उसको कहा खबरदार ये मेरा नबी है, इसको मत छूना। उसने कहा खुदा, उसने कहा मैंने भी तुझे इसलिए रोका कि तू नहीं जानता। और लिखा उसने इसको इतना कुछ दे दिया, गाय बैल मवेशी माल मता क्या कुछ दे दिया उसने। और जब उसने कहा कि यार तूने इब्राहिम मुझसे झूठ बोला, तू हमारे कौम के ऊपर लानत का सबब, उसने कहा सर मैं डर गया था, मैं इंसान हूँ। उसने कहा जा फिर। और उसने कहा खबरदार कोई इसकी बीवी को इसको ना छुए। और जितनी चीजें उसने दी थी उसने ये नहीं कहा होना चीजें हमें वापस दे दे, चीजें ले गया। सप्लायर ऊपर बैठा है और कंपनीज नीचे हैं, वो जिस कंपनी से निकलवाना चाहता निकलवा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको हर चीज उसने मुहैया की। और सबसे बड़ी उसकी क्या जरूरत थी मुझे बताएं, बताएं? औलाद। उसके पास औलाद नहीं थी, सप्लायर के पास औलाद भी, हालेलुया, औलाद भी दे सकता है। वो बांझ औरतों का घर बसाता है, उनको बच्चों वाली बनाता है, उनको खुशहाल कर देता है, शादमानी से भर देता है।
प्रेज द लॉर्ड। वो ना सिर्फ रोटी कपड़ा सप्लाई करता है, सारी जरूरतें जो कि मेडिकल साइंस के थ्रू, डॉक्टरों के थ्रू अगर पूछे तो कहते हैं नहीं, इब्राहिम को सब हकीमों ने कह दिया होगा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, तू अब 100 साल की उम्र को छू रहा है और 90 बरस की तेरी बीवी हो गई है, लेकिन यहोवा एल शडाई जो सप्लायर है, जो मुहैया करता है, जो जरूरतें पूरी करता है, उस एल शडाई के पास ये जरूरत पूरी करने की भी कुदरत है। हालेलुया। और उसने उसको एक बेटा अता किया और उसने उसका नाम इसहाक रखा, यानी मुस्कुराहट, क्योंकि वो खुश हो गए थे उसको देख के। प्रेज द लॉर्ड। वो दुख में थे, मुसीबत में थे, और उन्होंने, खुदा ने उसको उस वक्त में खुशी अता की, यहोवा एल शडाई ने। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप एल शडाई को जानते हैं? क्या वो आपका सप्लायर है? क्या आपने कभी छोटी छोटी बातों के लिए भी खुदा से कहा, उम्मीद रखी, ईमान रखा, यकीन किया, सोचा, पॉजिटिव सोचा कि हाँ खुदा मुहैया करेगा, खुदा आटा दाल भी देगा, खुदा खाना पीना भी देगा, खुदा सब कुछ देगा। मेरे पास तो ऐसी हजारों गवाही, मैं तो सुनाते रहता हूँ आपको, देखा हर रोज। आपको जब कभी खुदा का रूह उभारे फौरन मेरे घर चीज ले आया करो बना कर, क्योंकि तुमने थोड़ी लानी होता है, वो सप्लायर तुम्हें कहेगा। कंपनी नीचे, सप्लायर ऑर्डर ऊपर से करता है, वो बना के नहीं भेजता, वो ऑर्डर करता है, कहता बनाओ। शहजाद को भी कहा हुआ उसने, कुछ इसने बनाना है, पता नहीं सलाद बनाना, पता नहीं सलाद बनाना, क्या बनाना है इसने, कुछ चाइनीज खाना बनाना है। यहोवा एलोहिम, यहोवा मेरा बाप, एलोहिम मेरा बनाने वाला, एल शडाई जरूरतें पूरी करने वाला। और फिर पैदाइश के 18वें बाप में पहली 8 आयत अगर हम पढ़ेंगे नहीं, वैसे हम जिक्र करेंगे इस बात का। पैदाइश 18वां बाप पहली 8 आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि जब 3 मर्द इब्राहिम के पास आए, दोपहर की गर्मी में लू चल रही थी, सख्त गर्मी थी, और इब्राहिम फौरन उनके पास गया। उसने कहा मालिक आप मेरे डेरे में आए, और उसने कहा कि आप खाना खाएं। जल्दी से उसने बछड़ा ज़िबा किया, खाना बनाया है, और यहाँ पर उसने कहा मालिक। मालिक के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एदोनाई, यहोवा एदोनाई। एदोनाई का मतलब है माई लॉर्ड, माई मास्टर। उसने खुदा को अपना मालिक और आका तस्लीम कर लिया था, तभी तो सीरियों की तरह गश्त कर रहा था उसके साथ साथ, जहां जहां कहता था निकल जाता था उसके साथ साथ। मेरे अजीजों, क्या आपने इस खुदा को अपना मालिक और आका तस्लीम कर लिया? किस किस ने किया? मुझे दिखाएं जरा हाथ। सबने कर लिया। आप सब उसकी गुलामी में ना। यस्सु की गुलामी तो मुकम्मल आजादी, गुलामी के लफ्ज़ से घबराए ना। यस्सु की गुलामी जो मुकम्मल आजादी, असल में इब्लीस की गुलामी से घबराए। क्या लिखा है यहाँ पर 18वें बाप की 17वें में लिखा है, और खुदा ने कहा जो कुछ मैं करने को हूँ क्या उससे इब्राहिम से पोशीदा रखूं? क्या होता है जब हम उसको अपना मालिक बना लेते हैं, जब हम उसको अपना आका बना लेते हैं, एदोनाए मेरा मालिक मेरा आका, जब उसको अपना मालिक और आका बना लेते हैं, पूरे तौर से उसकी गुलामी में आ जाते हैं। गुलाम का क्या काम है? गुलाम रात दिन काम करता अपने आका के लिए, और वो गुलाम है, उसको तनख्वाह नहीं मिलती, बस रोटी पानी रैश मिलती उसको कोई सहूलियात नहीं मिलती, उसको जज़ात के हिस्से नहीं मिलते। वो अलग बात है कि मालिक खुश होकर उसको जब आज़ाद करे 7 साल के बाद, या जितने भी साल के उसका दिल करे उसको आज़ाद करने को, जब तो उसको जो मर्जी दे दे। लेकिन असल में गुलाम का काम है काम करना। जब हम उसकी गुलामी में आए तो उसको अपना मालिक और आका बना लेते हैं, तो फिर आका क्या करता है? आपको पता, अपनी पर्सनल बातें अपने गुलाम के साथ करते हैं, नौकर के साथ करता है वो। आपको पता है इब्राहिम का भी एक पर्सनल नौकर था, एलिएज़र। उसने सिर्फ पर्सनल बात की, उसने कहा देख मैं मरने को हूँ, लेकिन मैं तुझसे कसम लेता हूँ कि तू मेरी बेटे लिए और कहीं से कोई लड़की नहीं लाना था, तो इसके नाना के घर जाना, इसके रिश्तेदारों में जाना और वहां से लड़की लेकर आना। और उसने जो कसम उसको दी और वो उसने पूरी करी। अच्छा, ये पर्सनल मैटर था, रिश्ते करना और वो नौकरों को बताने की क्या जरूरत है। लेकिन जो नौकर पूरे तौर से वफादारी करता है, उसका मालिक उसको अपनी बातें बताता है। अब इब्राहिम ने खुदा को अपना मालिक माना, मालिक और आका दिल से तस्लीम कर लिया, तो उसने भी कहा क्या जो कुछ मैं करने को अपने खादम को ना बताऊं, अपने दोस्त इब्राहिम को ना बताऊं? हाँ, जब कोई ऐसा काम वो करेगा, जो लोग उसको अपना मालिक और आका बना लेंगे, खुदा भी बड़े बड़े भेद की बातें उस पर जाहिर करेगा। खुदा बड़े बड़े काम उसको बताएगा, बड़े बड़े पोशीदा बातें उसको बताएगा अपनी, कि देख। फिर क्या हुआ? खुदा ने उसको बुलाया, उसको कहा देख भाई इब्राहिम, क्योंकि उसने उसको अपना मालिक मान लिया, एदोनाए, यहोवा एदोनाए। तो उसने कहा अच्छा मैं इस मुल्क को तबाह करूंगा। उसने कहा अच्छा? उसने कहा खुदावंद अगर वहां पे कोई रास्तबाज हुए 50 भी तो। अब ये बात वही कह सकता है जिसकी को खुदा से रफाकत है। आम आदमी खुदा के साथ नहीं बहस कर सकता, आम आदमी खुदा के साथ शिफायत नहीं कर सकता। ये शिफायत कर रहा है। अच्छा, शिफायत करने वाला बन गया अब वो। पहले से उसको जब मालिक बनाया तो खुदा ने अपने राज पे जाहिर किया, उसकी रफाकत बढ़ी, उसकी वफादारी में वो चलता रहा। अब क्या हुआ कि जो बेहतरीन शिफायत करने वाला शख्स है ना, वो खुदा की बेहतरीन रफाकत से पैदा होता है। हालेलुया। आज बहुत से लोग हमें आकर बताते हैं, एक बहन ने मुझे बताया, उससे मैं खुश हूं क्योंकि उसकी दुआएं जिंदगी बहुत
लेंथी है। वो कहती भाई मुझे खुदा ने शिफायत का रूह दिया है, मैं बस अपने घर में बैठती हूँ और अननोन जिसको जो प्रॉब्लम है खुद ही देख लेती हूँ, वो मुझे कहे या ना कहे, मैं उसके लिए आंसू बहाती दुआ करती हूँ, खुदा उसके काम करता है। जो शिफायत करने वाला है वो खुदा की रफाकत के बाद बनता है, और शिफायत करने के लिए पाक रूह रहनुमाई देता है। पाक रूह असल में इंटरसेसर है, पाक रूह अपने आप से नहीं शिफायत होती। अब इब्राहिम ने शिफायत करनी शुरू की। आप अगर शिफायत करना चाहते हैं, आप अपनी कलीसिया की बेटरमेंट के लिए, अपने मुल्क के लिए आप खुदा से शिफायत करना चाहते हैं, तो पहले आप खुदा से रफाकत को मजबूत करें, जैसे इब्राहिम ने की। और इब्राहिम ने कहा खुदावंद अगर 50 हुए तो, उसने कहा छोड़ दूंगा अगर 50 नेक हुए। उसने सॉरी खुदावंद मैं माफी चाहता हूँ। अब देख कितनी फ्रैंकनेस हो रही है उसकी, क्योंकि उसकी मोहब्बत है, वो कर सकता बात। उसने कहा खुदावंद अगर 40 हुए तो, उसने 40 की खातिर भी छोड़ना। उसने कहा खुदावंद सॉरी माफ करना, एक और दफा बात करूंगा। अगर 30 हुए तो, उसने 30 की खातिर भी छोड़ दूंगा। उसने खुदावंद एक और, अगर 20 हुए तो, उसने चल यार तू क्या याद करेगा, 20 के लिए भी छोड़ दूंगा। उसने कहा खुदावंद अगर 10 हुए तो। 10 पे आके वो मेरा ख्याल झिझका यहाँ पे, उन्हें सोचा मैं बहुत नीचे ले आया। बार्गेनिंग करते हैं ना हम लोग, कोई 50 की चीज बताए हम 10 की बताते हैं, इसको हमारे मुल्क में असूल है ना। लेकिन इंग्लैंड में लोग बच्चों को तालीम जो स्कूलों में दी जाती है ये दी जाती है कि बच्चों बार्गेनिंग नहीं करनी। जैसे हमारे दादी दादा बताते हैं ना, ध्यान से जाओ एकदम ना जितने मांगे दे देना पैसे। हमारे बुजुर्ग में ये कह के भेजते हैं सौदा लो उसे थोड़ी सी बार्गेनिंग करो। उनके बुजुर्ग ये बताते हैं बेटा बार्गेनिंग ना करना, अगर तेरी जेब में पैसा हो तो ले लेना, उसको ये मत कहना कि 1 सेंट भी कम कर ले। ये वहां का असूल है। और एशियन लोग बार्गेनिंग करते हैं। इब्राहिम जो वो भी एशियन ही था, वो अमेरिका का नहीं था, इंग्लैंड का नहीं था ना। उन्होंने कहा नहीं उस्ताद जी 10, मैं सोचता हूँ 10 से नीचे ले आता, उसको 3 पे ले आता। अब बोलता रहता तो खुदा, लेकिन बस यहाँ के ना कुछ मैं समझता हूँ कि ये शिफायत का एक लेवल होता है जहाँ पे इंसान भी। दिनाकरण एक बार बताता है, मैंने ये गवाही पहले भी शेयर की थी कि एक जगह दुआ करने गया तो एक औरत उसके साथ धक्का मार रही थी, पुलिस उसको पीछे हटो, उसने 2 मटके हाथ में उठाए हुए थे। तो उसने कहा ये दिनाकरण की पुलिस ने कहा ये औरत क्या कह रही है, इसको ले क्या हो मेरे पास। 2-3 लाख का मजमा था वहां पे। उसने कहा सर वो ये औरत की देखें उस पास ले। उसने कहा क्या है इसमें। इसने कहा मेरे 2 बेटे, उनकी राख है, ये हिंदू औरत थी वो। उसने कहा ये मेरे वो बेटे हैं जो मर गए थे, इनकी चिता जला दी गई है, लेकिन राख जो है असूली तौर पे हमें बहानी चाहिए गंगा में। मैंने नहीं बहाई है क्योंकि मुझे पता चला था कि आप यहाँ इबादत करने आ रहे हैं, और मुझे पता है कि आपकी दुआ से मौत से होते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। मैंने अपने दोनों बेटों की राख संभाल कर रखी है कि आप दुआ करें तो मेरे बच्चे जिंदा हो जाए। तो दिनाकरण ने दुआ तो नहीं की, लेकिन उसकी काउंसलिंग की और उसको उसने रुखसत कर दिया। उसने कहा देख मेरी बेटी भी मरी है, मैं भी सब्र करके बैठा हूँ और वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आया, मैंने उसको एक मेल कर दी। मैं कहा भाई आपने दुआ क्यों नहीं की उसके ऊपर। तो उसने कहा मैं अपना ईमान खो बैठा था। उसने कहा आप भी दुआ करें कि खुदा मुझसे इसका हिसाब ना ले। उसने कहा सच बता रहा हूँ, देखो सच्चाई है उनके अंदर। उसने कहा ब्रदर जस्टिन मैं तुझे सच बताऊँ कि मैं उस टाइम ईमान खो बैठा था इस बात में कि खुदा राख को भी जिंदा कर सके। 6 महीने से उस औरत ने राख रखी हुई थी। 6 महीने से वो इंतजार कर रही थी कि दिनाकरण यहाँ क्रूसेड करने आएगा तो मैं राख लेके पहुंच जाऊंगी। कई बार ईमान खो बैठते हैं। शायद इब्राहिम यहाँ पे आके 10 पे आके रुक गया है। उसने कहा अच्छा, लेकिन वहां 10 भी नहीं निकले। कितने थे जी वहां पे? 3 थे। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा जो है वो मोहब्बत वाला खुदा है, वो हमारा बनाने वाला है, वो सप्लाई करने वाला है, वो अदनाए है, वो हमारा मालिक और हमारा आका है। मलाकी नबी किताब में लिखा है, पहले बाब की 6 आयत में लिखा है रब्बुल फाज तुमको यूं फरमाता है कि मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है। आज इब्राहिम ने खुदा को अपना आका माना और उसकी इज्जत की, रिस्पेक्ट की, और खुदा ने उसके साथ बड़ी बातें की, अपने भेद बताए, और खुदा ने उसकी शिफायत पर भी कान धरा। नहीं तो खुदा वहीं पहली बार ही कहता नहीं भी नहीं 50 भी हुए तो मैं मारूंगा, मुझे ज्यादा चाहिए फिगर। नहीं, खुदा ने कहा क्योंकि शिफायत कर रहा था। और शिफायत करने वाला मैंने बताया अच्छा शिफायत करने वाला वही है जो अच्छा रफाकत करने वाला है खुदा के साथ। जिसकी अच्छी रफाकत होगी जितनी उतनी अच्छी शिफायत कर सकेगा। एक और नाम, ये बड़ा मशहूर नाम है यहोवा यरी। ये तो आम है ना, सब जानते हैं यहोवा यरी, तो जानते हैं ना। डोंट वरी हिज नेम इज यहोवा यरी। फिक्र मत करें क्योंकि वो मुहैया करने वाला है। यहोवा यरी गीत भी गाते हैं, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। जो यहोवा यरी पहले जो मैंने बताया वो सप्लायर में भी कुछ मुहैया करने की बातें बताते हैं, लेकिन सप्लायर का और मुहैया करने का थोड़ा ही फर्क है। सप्लायर तो वो है जो चीजें जरूरत के मुताबिक देगा, लेकिन जो मुहैया करने वाला है वो आप ही मुहैया करता है। लिखा खुदावन के पहाड़ पर बर्रा आप ही मुहैया किया जाएगा। हालेलुया। अब क्या हुआ यहाँ पर, इसका नाम है यहोवा यरी, इसका मतलब मुहैया करने वाला। क्या हुआ, पैदाइश 22वें बाब के 8वें में लिखा इब्राहिम ने कहा ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो आगे चलते गए। अब बात यह है कि खुदा ने इब्राहिम से कहा, देखो उसकी इतनी मोहब्बत थी, उसने इस तरह से अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया था।
کہ खुदा ने कहा कि इब्राहिम आज मैं तुझे एक जरूरी काम कहना है। उसने कहा हुक्म करें मालिक। उसने कहा हुक्म ये है कि आप अपने बेटे को लें और फलाने पहाड़ पर चले जाएं और वहां जाकर इसकी कुर्बानी कर दें। उसने ठीक है जनाब। उसने बिल्कुल कोई, कितनी मोहब्बत है, कितनी वफादारी है, कितनी ताबेदारी है, कितनी सिंसियरिटी है, कितना सिंसियर है खुदा के साथ यार। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, मैं अपना बेटा कुर्बान करूंगा। और वो चलता गया। अब जब चलता गया 3 दिन की मुसाफत, तो 2 मुलाजिम थे साथ गधे पे, उसने लकड़ियां भी चुनी हुई थी, आग भी थी, छुरी भी थी। फिर उसने रास्ते में उनको रोका। उसने कहा भी अब तुम यहाँ रुक जाओ, मैं और मेरा बेटा जाएंगे, हम कुर्बानी करके आ जाएंगे। तो जब वो आगे बढ़े तो फिर बेटे ने सवाल उठाया। बेटे को सोचना, उसने सोचा, उसने कहा मालिक, उसने कहा अबू जी हमारे पास आग भी है और लकड़ियां भी हैं, लेकिन बर्रा कहाँ है। अब ये जो बात उसने कही ना, सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा खुदा आप ही मुहैया करेगा, ये एक खुदा की रूह की तहरीक से वो बोला है, ईमान से। ये बेईमान आदमी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी रफाकत खुदा के साथ थी। खुदा असल में बर्रा आप ही खुदा ने मुहैया किया, हमने नहीं मुहैया किया। हम बकर मंडी से बर्रे नहीं लाकर कुर्बान कर सकते। हमारे लिए एक बर्रा मुहैया किया गया है और उसका नाम है यीशु, और वो खुदा ने आप ही मुहैया किया है। और वो सारे गुनाहों के, पूरी परिनो इंसान के गुनाहों के वास्ते इफ्जी हुआ और वो सौखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया गया। और बड़े जब वो आगे बढ़े, जब उसने कहा कि खुदा आप ही सौखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा, तो बड़े स्कॉलर्स हैं बाइबल को कहते हैं कि इम्कान गालिब है कि इसी जगह पर इब्राहिम ने यीशु मसीह को देखा है सलीब पर, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम इब्राहिम जो तुम्हारा बाप है वो मेरा दिन देखने की उम्मीद पर जिंदा था, और बड़ी ख्वाहिश थी उसकी, और उसने देखा और खुश हुआ। मेरे अजीजों, इब्राहिम खुदा का वफादार बंदा, खुदा के ताबे चलने वाला, खुदा की फर्माबरदारी करने वाला। खुदा ने भी अपने आप को उस पर इस तरह से जाहिर किया, खुदा ने भी उसके साथ काम किया, और फिर यहाँ तक वो आगे बढ़ता गया। इतनी ताबेदारी की उसने कि उसने अपने बेटे को बांधा और उसने लकड़ियों पर रख दिया, और जैसे उसने छुरी पकड़ी साथ ही खुदा ने फरिश्ते को भेजा। उसने कहा बस, उसने कहा तू अपना हाथ ना चला इस लड़के पर। हालेलुया। यहाँ बहुत सी बातें, वो कुछ लोग कहते हैं कि वो ये भी समझता था कि खुदा जिंदा करने पर भी कादिर है, अगर मारने का हुक्म दिया है तो हो सकता है वो जिंदा ही कर दे, और क्योंकि इसने कहा कि इसी से तेरी नस्ल कहलाएगी, इसी से, ये भी कलाम उसके ज़हन में था। तो अभी उसको ये नहीं पता था कि खुदा किस तरह से काम करेगा, लेकिन खुदा ने ऐन उस मौके पर आकर उसको रोक दिया और उसने कहा कि वेरी गुड, तू ताबेदार बंदा है खुदा का, यहोवा यरी, मुहैया करने वाला। और वहां पर कहावत चली कि खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। लिखा है पैदाइश 22:14 में लिखा है, और इब्राहिम ने उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। हालेलुया। खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। आपका सप्लायर खुदा है, आपका बाप खुदा है, आपका मुहैया करने वाला खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। हम क्यों शक में और वहम में रहते हैं हर वक्त। और एक और नाम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसको हम क्लोज करेंगे, यहोवा राफे। मेरे बेटे का नाम राफे है ना। यहोवा राफे का मतलब है माय गॉड माय हीलर, मेरा शाफी। वो कैसा जबरदस्त इसके काम है, देखो, और जरूरतें भी पूरी करता है। वो हमें नजात के लिए उसने इंतजाम भी किया और हमारी शफा के लिए भी काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। देखें लिखा है खरूज 15वें बाब की 26 आयत में लिखा है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी खुदा हूँ। हालेलुया। वो हमारा खुदा शाफी खुदा है। और मेरे प्यारे बहनों और भाई, देखें हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। नंबर 1 मैंने बताया खुदा का नाम एलोहीम, मेरा बनाने वाला। दूसरा नाम बताया यहोवा, मेरा बाप। तीसरा नाम बताया एल शडाई, जरूरतें पूरी करने वाला। चौथा नाम बताया एडोनाई, मेरा मालिक, मेरा आका। पांचवा नाम यहोवा यरी, मुहैया करने वाला। और छठा नाम यहोवा राफे, शफा देने वाला, मेरा शाफी। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इन सब नामों को जो पूरे तौर से हम पर रिवील किया है वो यीशु मसीह ने किया है दुनिया में आकर। हालेलुया। शफा के काम को, नजात के काम को, प्रेज द लॉर्ड, मुहैया करना, सब कुछ उसने करके दिखाया। वो जब जमीन पर आया तो पूरी की पूरी खुदाई असल में जमीन पर आई थी। पूरा खुदा जो था वो एक इंसान के रूप में हमारे दरमियान में आया। खुदा तक रसाई जो थी
किसी वक्त में मुश्किल थी, लेकिन अब खुदा तक रसाई बड़ी आसान है यीशु मसीह के वसीले से। हालेलुया। अब हम यीशु मसीह के वसीले से उसके तख्त के पास तक जा सकते हैं। यीशु मसीह जो है वो जमीन पर आया और उसने बाप का पूरा अक्स जमीन पर पेश किया। बाप की पूरी जो शान थी, बाप की जो कुदरत थी, उसके वसीले से जमीन पर देखी गई। और जो काम बाप करता था वही काम बेटा भी करता था। बाप मुर्दों को उठाता, उसने कहा बाप जिसे चाहता है जिंदा करता है, बेटा भी जिसे चाहता है जिंदा करता है। और बाप जो है बियाबान में रोटी बरसाता था, खाना देता था, बेटा भी हजारों को सैराब कर देता है, हजारों को शेर कर देता है। और बाप जैसे मुर्दों को जिंदा करता है, वो भी मुर्दों को कम देकर जिंदा करता है। और बेटे के पास अदालत का भी इख्तियार है, और बेटे के पास गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है, और बेटे के पास आलमे रवा की कुंजियां हैं। और उसने कहा वसीला मैं हूं, राह का जिंदगी मैं हूं। मेरे अजीजों, उसने कहा अगर कोई प्यासा हो तो आए और आबे हयात के चश्मे से पिए। प्रेज द लॉर्ड। और वो आपको आज बुलाना चाहता है। हमारा यहोवा खुदा जो है वो हमारा बाप है, हमारा एल शडाई है, वो सप्लायर है हमारा, वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला है, वो यहोवा राफे है, वो शफा देने वाला है। और शफा आपको किसी किस्म की भी बीमारी हो, किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो, यीशु मसीह के वसीले से आप शिफा पा सकते हैं, क्योंकि ये खुदा के नामों की अक्कासी करता है। ये कलाम खुदा के नामों के बारे में बताता है हमें। और जो जिसका नाम है, मैंने बताया, जब हम कायद आज़म का नाम लेते हैं पता चलता उसने पाकिस्तान बनाया था। जब हम और किसी का नाम लेते हैं पता चलता हिस्ट्री में फलां मदर टेरेसा ने ये काम किया था। जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं जिसका मतलब है यहोवा नजात है, हालेलुया, नजात दहिंदा, फरिश्ते ने कहा वो अपने लोगों को गुनाहों से माफी देगा और उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। आए मेरे अजीजों, अपनी आंखें बंद करें।